share. Wait. Have you got? Yes, sir. Okay, please click on that. Are you able to see the question? Yes, sir. Please poll. What is the question? Bad industrial relations can be caused by. Yes, please vote. Your vote is very valuable for me. Yes, 8 people vote. 9, 10, 15, 16. Great. 17. One more is remaining. Okay, done. Okay, refresh. I will share you the result of your poll. I will share my screen to you first. Okay, are you able to see the poll result? Yes, sir. Yes, sir. So what is the result? Discrimination. Discrimination. And someone, some from your side given the rise in inflation, business going liquidation, rise in taxes. Okay, मीन्स मैं आपके जो वोट है उसका ये करता हूँ, कदर करता हूँ, बट द थिंग इज that is not the right answer. That is a ongoing factor. You can say contemporary factors. Okay, the basic thing that bad industrial relation. As I said, what is industry? What is relation? Have you got that meaning? मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने रॉन्ग आंसर दिया है. Are you able to see the PPT? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो इंडस्ट्री का डेफिनेशन आपको मैंने बताया, रिलेशन आपको बताया, एंड when employer and employee works in that industry, okay, at that time the industrial relation exists. और ये बैड कब हो जाते हैं? बैड कब हो जाते हैं? When there is When there is a dispute. disputes or discrimination. when there is a dispute. तो डिस्प्यूट क्यों होता है? डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. देखिए, हम इवोल्यूशन में देखेंगे कि इवोल्यूशन में इंडस्ट्रियल रिलेशन का इवोल्यूशन है. ठीक है, वो कैसे इवॉल्व होते आया है. डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है? सीनियोरिटी की वजह से, कास्टिज्म की वजह से, फिर हम बोल सकते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर लाइक मेल फीमेल फेमिनिज्म. हाँ, ये सारी चीजें आ जाती है उधर. ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत सारे एंगल्स है डिस्क्रिमिनेशन के, जिसकी वजह से एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा. एंड ड्यू टू दैट रीजन बैड इंडस्ट्रियल रिलेशन बन जाते हैं. अभी जब भी आप सोचोगे बैड इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब क्या, द रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर. गॉट इट? कुछ डाउट है इसमें? No, sir. क्लियर. कैन वी गो अहेड? आप बोलेंगे तभी मैं आगे जाऊंगा. हाँ सर. Yes, please acknowledge me. Yes, sir. You can go ahead. Yes, sir. Yes. So what is the meaning and related concept? I will read it. Already I have explained you what is the meaning, and then we'll just go through the related concept. So what is the meaning? The relationship between the employer and employee is usually referred to the industrial relation. That is clear? Quick. Yes. Yes. Yes, sir. Yes. Yes. Great. Second, the labor management relationship is a highly sensitive and complex aspect influenced by a variety of factors. जैसे मैंने आपको बताया, what are the variety of factors? It might be due to wages, it might be due to various hygiene factors, hygiene facility provided in the premises of the industries. It might be due to the working conditions. Lots of factors are there, and due to which the labor management relationship get hampered. Next,
The term industrial relation, we called it as an employee relation also, we called it as a labor management relation is also, okay. So that are used interchangeably by the organization while dealing with the employer and employee relationship in the organization. Okay. Second point, the protection of manual interest of the employees and employers is the essence of the definition of the industrial relation. Basically, industrial relation comes into existence to protect the manual interest of the employees and employers. ठीक है? Sir, Healthy manual interest relationship. मतलब हाँ, sorry. manual interest meaning? एक मिनट आप क्या पूछे? वॉइस आपका ब्रेक हो रहा है. Sir, What you manual asking? interest मतलब Manual interest, okay. The protection of manual interest of the employees and employer in the essence of manual interest in the sense what? The policies in the legal essence. Legal interest we can say na, when people works in organization contract, it's have some policies, regulation, and हर एक का एक लीगल इंटरेस्ट होता है. ठीक है. एम्प्लॉय का जैसे लीगल इंटरेस्ट कब क्रिएट होता है? व्हेन एम्प्लॉय ज्वाइंस द ऑर्गेनाइजेशन एंड सब एग्रीमेंट्स हैपन इन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. वो एग्रीमेंट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ एग्रीमेंट? मैन्युअल इंटरेस्ट का मतलब है म्यूचुअल. Both parties are agrees, okay, to for an healthy relationship between each other. अगर म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्या रिलेशनशिप हेल्दी बन सकता है? नहीं हो सकता. ठीक है. सो बोथ साइड से इंटरेस्ट होना जरूरी है. नेक्स्ट, तो अब हम चतुर वाले डेफिनेशन पे जाएंगे, बिकॉज अब तक हम जो डिस्कस कर रहे थे ये सारे रैंचो कॉन्सेप्ट था. इट्स अ understanding concept. Now we'll go with the bookish definition. Like one of the most comprehensive definition which put industrial relation in a proper perspective of human relation is by Henry Richardson. What definition he is given? He says that industrial relation are the art of living together for purpose of production. Purpose of production. देखिए मैंने क्या कहा आपको? ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन क्या था? अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर फॉर वन कॉमन पर्पस. ठीक है. अभी इंडस्ट्री का डेफिनेशन क्या बताया गया है बाय हेनरी रिचर्डसन? द ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर, ओके, फॉर पर्पस ऑफ प्रोडक्शन. सो इट इज अ इंडस्ट्रियल डेफिनेशन. एंड व्हेन वी से व्हाट इज द इंडस्ट्रियल रिलेशन, then industrial relation is that people are mutually having we can say that people are living happily together, okay, for the purpose of production. They don't have any conflict in between each other. That is the ideal situation. हम theories में देखेंगे कि ये क्या theory है. Okay, next क्या है? The parties involved in the industrial relation. What are the parties? The workers and the employers have a common purpose of production. ठीक है. How industry and organization definitions are similar to each other? The common purpose. Got it? इंडस्ट्री में भी कॉमन पर्पस की वजह से आ रहे लोग इकट्ठा, ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन पर्पस की वजह से आ रहे. बट एज आई इंडस्ट्री इज अ नैरो कंसेप्ट. इंडस्ट्री स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग को रिलेट करता है, प्रोडक्शन को रिलेट करता है. ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट आएगा. Say industry as an organization, but not organization as an industry. Okay, that is the basic concept. Because industry organization में ही आता है. Organization में अलग अलग processes होते हैं other than manufacturing process. ठीक है. So that's why it's a broader term. Now meaning and related concept. He added further to that. Firstly, what he said? He said that industrial relations are the art of living together for the purpose of production. And then what he said? He added further that the regulation of relationship is from within, for the parties have to learn to live together by a process of accommodation and adjustment. तो यही होता है हमारे घर में भी. If we take an example as a family, as an organization, we family members living together with the adjustment. We help together. हम गलतियों को माफ करते एक दूसरे के. पापा मम्मी बच्चों की गलतियों को माफ करते हैं, बच्चे एडजस्ट करते हैं. सो in this way the family members living together. In the same way
इन इंडस्ट्री, बट इंडस्ट्री में क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, एंड दैट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नेवर हैपेंस बिकॉज एवरी, एज आई टीच यू इन ओबी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कि हर एक पर्सन यूनिक है नेचर में, उसका पर्सनालिटी यूनिक है, तो एवरीवन बिहेवियर इज डिफरेंट. So it's very difficult to, you know, a group to handle a group of people in an organization context. So it requires some laws, regulation, policies which regulates those people in a holistic way, you can say, in a, you know, proper way. Got the concept? समझ में आ रहा है अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं? हम स्टेप बाय स्टेप इंडस्ट्री मतलब क्या, रिलेशन क्या, इंडस्ट्री रिलेशन मतलब क्या, एंड देन through some, you know, valid definition उसको उसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं. You are getting the concept? Yes, sir. Yeah, great. Yes, sir. If you have any doubt, don't say yes. If you not clear with the definition or the meaning, please let me know, because ये बेस है. आपको अगर इंडस्ट्री रिलेशन क्या है यही नहीं पता होगा तो आगे का आपको क्या पता चलेगा. ठीक है, सो दिस इज द बेस. इजीली मत लो बिकॉज हर एक का परसेप्शन अलग अलग होता है. आपको अभी मीनिंग और डेफिनेशन में दिखाऊंगा, and I will explain you different philosophers given a different definition for industrial relation. Okay, so what this indicates, that every person have their own perception to define industrial relation definition. Okay, now Clegg क्या बोलते हैं? H.A. Clegg observe as the field of industrial relation includes the study of workers and their trade unions, management, employers, association and the state institution concerned with the regulation of the employment. अभी ये देखिए, ये हो गया चतुर डेफिनेशन. इजी वे में रैंचो डेफिनेशन आपको समझना है तो आप कैसे समझोगे? द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या क्या होता है? एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर, वर्क, दो लोग होते हैं, और एक है कलेक्टिव, अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज इज कॉल्ड एज अ ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन का डेफिनेशन हम देखेंगे बाद में, ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट में. बट ट्रेड यूनियन का अभी का मतलब आप क्या समझोगे? ट्रेड यूनियन इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज come together to demand something, to, you know, to demand something or fulfilling their wish, their expectation. They have some common agenda why they form the union. Okay, they require something from the management, so that is called as a trade union. Union name indicates that people are coming together for what? For related to the trade thing, related to demand something. So what Clegg say, that the field of industrial relation which includes employee, employer and trade union with management. Okay, so employers association and state institution. State institution मतलब क्या? What is meant by state institution? State मतलब क्या? Guys, what is meant by state institution? What is this state institution? The government, state government. Yeah, state governments. State is called as a government. It might be a country, it might be a local government, it might be a state. And institution is nothing but the regulating body. जैसे हमारे इधर HRD मिनिस्ट्री है, जो रेगुलेट करती है सारे ह्यूमन रिसोर्स HRD सेक्शन को. Okay, so such type of regulating authority is called as a institutions. So state institution मतलब गवर्नमेंट बॉडीज जो रेगुलेट करते हैं लेबर को, एम्प्लॉइज को, ठीक है, विद लीगल पॉलिसी, लीगल एक्ट के हिसाब से. सो दैट इज अ स्टेट इंस्टीट्यूशन कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. जो एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, जो एक्ट आप आने वाले दिनों में पढ़ने वाले हो. ओके, दैट एक्ट रेगुलेट्स द एम्प्लॉय विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर both, it's not that only employee, whatever there in organization, employer, they regulates both. Is there any difficulty to understand this definition? कुछ प्रॉब्लम है क्या? शॉर्ट में क्या है कि क्लेग बोलते हैं कि ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, इनको गवर्न कौन करते हैं? स्टेट इंस्टीट्यूशन के लॉज, जैसे लेबर लॉज है. Got the definition? Yes, sir. कोई क्वेश्चन है इस पे? No, sir. No. Okay, so before begin with one more definition, I want some volunteer from your side. देखिए, मैंने जैसे कहा था आपको
कि तीन स्लॉट होंगे हमारे सेशन के, सो आई रिक्वायर 2 वॉलंटियर्स फॉर एवरी स्लॉट। अभी आप आगे पूछोगे व्हाई सर, प्लीज आस्क मी व्हाई Why, sir? Why, sir? हाँ, so I required volunteer to conclude my every slot. At the end, जब भी मैं ब्रेक दूंगा आपको 5 मिनट के लिए, आपने क्या सीखा ये आपको मुझे बताना पड़ेगा। You got the answer? तो मैंने जैसे कहा कि आप एक नोटपैड और पेन लेके बैठे होंगे, as I am expecting that. हाँ, Yes, you sir. writing some points, whatever I am explaining to you. Yes. Only that point you have to tell me that we learn from this slot this part of definitions. Industrial relation means what, industry means what, relation means what. You have to explain in a short. Are you agree with this activity? Yes, sir. ठीक है, तो अभी हम इस स्लॉट से नहीं करेंगे, अगले स्लॉट से करेंगे, तो बी Yes, केयरफुल। ओके, तो Okay, वॉलंटियर कौन होंगे 2 अगले स्लॉट के लिए? प्लीज गिव मी द नेम। So you Please can come up. select. No. You cannot select because you cannot say like that. I select. It's a volunteer act. You are a management student. You have to leadership quality होने चाहिए भाई आप में। Initiation फटाक से मैं करूंगा, कितना है आपको जो पॉइंट्स लिखना है और बताना है कि हमने ये सीखा सर, and that's why you are sitting for my session ना, to learn. So who will be the volunteer for next slot? Two names I want. आप इसमें टाइम लगाओगे तो मुश्किल है। 2 volunteers. Who is a leader in your batch? Sir, I'll be Sir. one. हाँ, अभी कैसे आ गए लीडर बोलने के बाद? हाँ, नाम बोलो। Sir, I नाम was just बोलो। waiting if anyone else wants to volunteer. Don't wait ना, it's not a leadership quality then. If you wait Yes, for sir. someone else ना, no one will come in front of you then. Okay. Now Okay, tell sir. me 2 volunteers name. Yes, first one Shrishti. Srishti, second one Rashmi. रश्मि। ओके ग्रेट, ठीक है, रश्मि सृष्टि आप पॉइंट नोट डाउन करो अगले सेशन का, और कंक्लूड करना है आपको लास्ट में, ठीक है? Sure, sir. Yeah. Okay, sir. ओके, ठीक है। तो व्हाट हमने अब तक 2 फिलोसोफर्स के थॉट देखे, उनके डेफिनेशन देखे। एक का नाम था हेनरी रिचर्डसन और दूसरे का नाम था क्ले। अब हम थर्ड, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्रियल रिलेशन मीनिंग according to Dale Yoder. So what he says that industrial relations deal with the problem which arises in the context of human relationship when the workers submit themselves to be controlled by the employer. Okay, that is some philosophical definition. हाँ? ये क्या डिफाइन करते हैं देखेंगे। नीचे क्या बोला है उन्होंने, प्रॉब्लम्स ऑफ a human relationship arises from the sales of services for a wage and working on the premises of employer and under their control from the subject matter of industrial relation. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, डेल यॉडर इनका कहना क्या था कि when you are working under some employer, okay, you are giving control, okay, आपका जो कंट्रोल है वो एम्प्लॉयर के हाथ में दे रहा हो, you are giving complete control towards the employer hand, ठीक है, and that industrial relationship, that is meant by industrial relation मीन्स ये वन वे हो गया। देखिए ना, पहले हम इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का कैसे डेफिनेशन करते थे कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में का रिलेशनशिप इन इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन। बट अकॉर्डिंग टू डेल यॉडलर, इनका कहना क्या था कि एम्प्लॉय सबमिट्स देयर कंट्रोल टुवर्ड्स एम्प्लॉयर। तो अभी ये तो सीधा इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयर कैन एक्सप्लॉइट एम्प्लॉय एनी टाइम। ओके, सो that is actual the definition of Yodler. अभी इसके क्रिटिसाइज बहुत लोगों ने किया इनको, बट इन्होंने ऐसा ही डिफाइन किया। व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन? दैट एम्प्लॉय इज गिविंग कंट्रोल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉयर। एज डेफिनेशन से, industrial relation deals with the problem which arises in the context of human relation when workers submit themselves to being controlled by the employer. ठीक है, तो इनका कहना था कि अगर हम ये कंट्रोल कर पाए, अगर दोनों भी स्टेक होल्डर समझे खुद को इक्वल समझे इन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय, देन ये रिलेशनशिप
बिल्ड हो पाएगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होगा। एंड फाइनली जो आपका ऑब्जेक्टिव है, व्हाई यू कम टुगेदर, दैट विल फुलफिल इजीली। दैट इज द इसेंस ऑफ दिस डेफिनेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इज एनी डाउट इन दिस डेफिनेशन? No. तो इसका मीनिंग इन्होंने दिया है आगे जाके, ठीक है। डेफिनेशन गिवन इन द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ठीक है, अंडरस्कोर्स द फैक्ट दैट इंडस्ट्रियल रिलेशन कवर्ड। अभी और एक डेफिनेशन है, बिकॉज व्हाई आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू इंडस्ट्रियल रिलेशन विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। द रीजन इज दैट बिकॉज हर एक का परसेप्शन अलग अलग होता है, आपका भी परसेप्शन अलग होगा जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे। In which way you are looking towards employee and employer relation, because you are the mediator, you are the HR people, you have to negotiate in between employee and employer. You have to play a role of negotiator there. So at that time, how you are looking towards employee and employer relationship, that is very important. And to build that perception, this definitions plays the important role. Okay, why you are learning? Firstly, you have to understand why I am learning this concept. सर ये मुझे अलग अलग डेफिनेशंस क्यों बता रहे हैं? एक डेफिनेशन बताओ, मैं एग्जाम में लिख लूंगा, बात खत्म, मुझे मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं, आई एम नॉट टीचिंग यू इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम टीचिंग यू हाउ यू परसीव दैट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन। एट दैट टाइम जब आप डिसीजन लोगे मेडिएशन का या निगोशिएशन का, ठीक है, उस समय ये डेफिनेशंस आपको हेल्प करेगा कि आपको कैसे देखना है इस रिलेशनशिप को। Got it? Why you are learning this concept? Yes, yes, yes. Yes. Yes, sir. No, no होगा, no होगा तो भी बोल देने का, no. ठीक है? Yes, sir. Fine. So, ब्रिटानिका का definition क्या है? To put it rightly, the subject of industrial relation therefore includes individual relation and joint consultation between employers and employee at the place of work. Collective relation between employer and their organization and the trade unions and the part played by the state in regulating the relation. देखिए इसमें तीन अलग अलग पार्ट है। ब्रिटानिया का डेफिनेशन क्या है? वो कहते हैं कि इसमें तीन एक्टर्स प्ले करते हैं रोल। फर्स्ट है एम्प्लॉय, सेकंड है एम्प्लॉयर एंड थर्ड है रेगुलेटिंग बॉडीज, जैसे हमारा लेबर लॉ है या एचआरडी मिनिस्ट्री है। हाँ, ये और एक पार्ट है ट्रेड यूनियन। सॉरी, देयर आर 4 पिलर्स अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। तो इनका कहना है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में या ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर में, इसको रेगुलेट किया जाएगा। इट्स अ पार्ट प्लेड बाय द स्टेट इन रेगुलेटिंग द रिलेशन। इस डेफिनेशन का कहना है कि एज बाय द लॉ एंड द रेगुलेटरी बॉडीज of the state regulate those relationship। देखिए अलग फिलोसॉफिकल थॉट आप जब देखेंगे कि आपका फैमिली का जो रिलेशनशिप है, अगर मैं बोलूंगा कि ये बाहर के लोगों द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, मींस फॉर एग्जांपल इन योर फैमिली सम कॉन्फ्लिक्ट हैपेंस, ठीक है, आप आपके फैमिली रिलेशनशिप को इंटरनल पार्ट मानते हो या एक्सटर्नल पार्ट मानते हो? इंटरनल। एवरीवन सेज इंटरनल। Yes. Everyone? Yes, sir. Okay. So I will ask once again another question. ठीक है? Which question I am asking? अगर दो भाइयों में जमीन या प्रॉपर्टी रिलेटेड कंफ्लिक्ट है, ठीक है, और वो इंटरनली सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, तो वो भाई किधर जाते हैं? कोर्ट जाते हैं। एंड इन कोर्ट विच लॉज गवर्न देम? प्रॉपर्टी एक्ट, फैमिली लॉ। अगर हस्बैंड वाइफ में कुछ झगड़े हैं तो फैमिली लॉ गवर्न करता है। So what is that? That is a law which is given by the state. State मतलब हम not our Maharashtra या Gujarat state. When I use the word state, state is nothing but our country. One supreme power that governs us. हमारा supreme power कौन है? हमारा constitution, हमारा country. जब भी मैं state बोलूंगा, I'm not saying any provinces or some provinces I'm using wrong word, that is the Maharashtra state or like that states. I'm saying the complete country. So state regulate that relationship. अभी अगर husband wife का झगड़ा है, वो अगर कोर्ट में जाते हैं
फैमिली कोर्ट में, देन देयर दैट स्टेट रेगुलेटिंग लॉज रेगुलेट दैट देयर रिलेशनशिप। वो फिर उनको ये करेंगे, क्या करेंगे, कन्विंस करेंगे, उनको काउंसिल करेंगे, काउंसिल करके उनको समझाएंगे कि डोंट ब्रेक योर रिलेशनशिप बिकॉज रिलेशनशिप हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि ये देखिए, ये गवर्नमेंट क्यों इसका कंसिडरेशन करता है, क्यों गवर्नमेंट को क्या कंसर्न है कि यार हस्बैंड वाइफ अलग ना हो, क्या रीजन है, क्या उस गवर्नमेंट का क्या बेनिफिट है इसमें? आप रहो या अलग हो, मुझे क्या करना है, ये गवर्नमेंट बोल सकता है ना। बट व्हाई गवर्नमेंट फ्रेम्स द लॉज to protect the relationship of if we are talking about relationship, family relationship. I'm comparing family and industrial relationship together, आप उसी context में देखिए, but I'm only giving you some social example. Why government comes in between husband and wife to protect their relation? Anyone? Government का क्या interest है उसमें? No idea. Yes, anyone? That is a I don't know. social aspect. देखिए, अगर ऐसे ही कपल्स के रिलेशनशिप ब्रेक होने लगे, या ऐसे ही हर एक घर में झगड़े होने लगे, बिकॉज फाइनली कंट्री इज नथिंग बट आवर स्टेट, आवर जो हमारा इंडिया है, अगर हम सोचते हैं ये बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये छोटे छोटे जो फैमिलीज है ना, इससे ही हमारा देश बना है ना। अगर फैमिलीज में कंफ्लिक्ट होने लगे और वो ब्रेक डाउन होने लगे तो देश कैसे चलेगा? हर जगह फिर कंफ्लिक्ट ही कंफ्लिक्ट होगा। तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट फ्रेम्स such laws that they protect the relationship between the family. That is the social aspect. अभी उसको कंपेयर करिए इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से। देखिए, अगर इंडस्ट्री, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? इंडस्ट्री में अगर ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर के बीच में झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन वो बंद है, तो उसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है? कैन यू जस्ट टेल मी? ऑर्गेनाइजेशन बंद है ड्यू टू कंफ्लिक्ट in between employees and employer, then what is the consequences? Why government took initiative to resolve that conflict? What is the interest of government? Yes, anyone please? मेरा आवाज आ रहा है आपके पास? Yes. Yes, hello. आपको आता है या नहीं? Please let me know. Yes or no. I will answer it. So yes. Yes, sir. No. आपको आता है? What is the consequences of conflict in between employer and employees? For example, आप सोचो टाटा मोटर्स है या महिंद्रा एंड महिंद्रा है, हमारा कांदिवली का, मुंबई का, ठीक है, उसमें ट्रेड यूनियन और महिंद्रा एंड महिंद्रा के मैनेजमेंट के साथ उनके झगड़े चल रहे और पूरा वो प्लांट बंद है कांदिवली का, कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? Production will stop. Employees will not get their salary. One by one. Yes. प्रोडक्शन विल स्टॉप। हाँ, अभी देखिए कोरोना के वजह से पूरा इंडस्ट्रीज बंद है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अपने जीडीपी पे हो रहा है, हाँ, हो रहा है। Yes, sir. It is affecting the GDP. It's affecting अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, yes, गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ रहा है लोगों को, जो वर्कर्स है, लेबरर्स है, जो घर पे बैठे हैं उनको Yes. मंथली कुछ तो 1000 2000 वो डाल रहे हैं ना अकाउंट में। why government take cares? The reason is that if some conflict exists within the industry in between employer and employee, that directly impact the organization, the country growth, the state growth. Okay, तो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट ट्राई पार्टी पॉलिसी एक कॉन्सेप्ट है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में
इंडिया ने ये एक्सेप्ट किया फॉर मीडिएशन पर्पस। तो कभी भी दो लोगों के बीच में अगर कंफ्लिक्ट होता है तो थर्ड पार्टी कैन इंटरवेन, दैट टू पार्टी कैन गो टुवर्ड दैट थर्ड पार्टी टू सेटल देयर कंफ्लिक्ट। तो उसको आर्बिट्रेशन बोलते हैं इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन ऑफिसर होता है, आर्बिट्रेशन कमिटी काउंसिल होता है, जिसमें है ना दो अलग अलग कंपनीज या दो इन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये दोनों जा सकते हैं अपने कंफ्लिक्ट लेके एंड दे कैन सेटल डाउन देयर। So that is the concept, and this definition says or highlight those points. Got it? आपको पॉइंट लिखना है, ट्राईपार्टिएट पॉलिसी, TRIPARTIET policy. You can search this word on Google to get the exact meaning. What is tripartite policy that is adopted by India after independence? Okay. Next. What is the time? How much time is remaining, Rashmi? So 10 minutes. That will be over at 11:20. Okay, over at 10:20. So what we'll do? Hey, don't say. Tell me it's over at 10:20. When we have start? So We the started slot at 10:35. 10:35 plus 45 minutes. Calculate. so 11:20 तक 45 minutes. हाँ, 11:20 sir. Okay, so let's start with evolution of industrial relation. How evolution taken place? अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? We'll have a quick recap. हमने क्या क्या पढ़ा? Any one of you volunteer? मैंने बनाया नहीं था, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कौन बताएगा अब तक हमने क्या क्या सीखा? Different definition to industrial relation. Yes. Yes, और meaning of industrial relation in different angles. Yes. Hello. Are you able to hear my voice? Yes sir. Yes sir. So next part is evolution of industrial relations. ठीक है. So what is this? Which generation is going on currently? Yes, which generation is going on currently? Industrial revolution or industry generation? 1.0 या 2.0 या 3.0 या 4.0? Yes. 4.0. 0. 4.0. ठीक है. Why we are learning this industrial evolution? हम तो पढ़ रहे इंडस्ट्रियल रिलेशन. तो सर आप मुझे हम सबको इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन क्यों दिखा रहे? देखिए, इंडस्ट्री होगा तो इंडस्ट्रियल रिलेशन होगा ना. और इंडस्ट्री जैसे ग्रो होता गया है फ्रॉम लास्ट 200 इयर्स और 400 इयर्स, ठीक है, तो उसके हिसाब से इंडस्ट्रियल रिलेशन भी डिफाइन होते गया है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग सेंचुरी वाइज is defined. Okay, that's why you must know which industrial revolution is currently going on and what are the industrial revolution already means we are gone with what type of industrial revolution. So first industrial revolution we name it as a in the 18th century. So why we call it as the first industrial revolution, and in that what is the interesting thing, तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, ठीक है, जो भी काम होता था वो मैकेनिकल प्रोडक्शन से होता था. मैकेनिकल इन द सेंस ह्यूमन एफर्ट्स 100% था. फॉर रनिंग एवरी मशीन ह्यूमन बीइंग इज रिक्वायर्ड. देयर इज नो एनी एक्सटर्नल एनर्जी इज यूज्ड टू रन दैट मशीन. So that concept is called Industrial Revolution 1.0. तो मैकेनिकल मशीन का एग्जांपल आप दे सकोगे कोई भी डे टू डे लाइफ का? मैकेनिकल मशीन जिसपे सिर्फ ह्यूमन एनर्जी का यूज होता है. वी कैन नॉट यूज एनी अदर एक्सटर्नल एनर्जी. एनी एग्जांपल? Construction. ओके, नहीं, मैं सिंपल एग्जांपल अगर मैं पूछूंगा, महात्मा गांधी क्या ये करते थे?
किस मशीन से वो अपना वो ये करते थे, क्या बोलते हैं उसको, सूत निकालना बोलते हैं ना, इट्स ह्यूमन एफर्ट्स ना। सूत जो Yes. निकालते थे महात्मा गांधी जी, खादी, खादी के कपड़े जो बुने जाते हैं वो किस मशीन से बुने जाते हैं, चरखा। तो चरखा, yes. चरखा इज नथिंग बट वन मैकेनिकल मशीन which is completely run by human being, means Human human being. efforts लगते हैं उसमें, इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती। another latest example is your bicycle. your bicycle is run by petrol, किससे चलता है बाइसाइकिल, बाइसाइकिल किससे चलता है आपका, Human effort. Human effort. ह्यूमन एफर्ट से। सो दैट आपको अभी समझ में आ रहा है कि 18th सेंचुरी में जितने भी मशीन्स थे वो कैसे चलते थे, दैट इज हाँ, सर। इंडस्ट्री 1.0। अभी देखिए, अभी इलेक्ट्रिसिटी आ गया 19th सेंचुरी में। सो 19th सेंचुरी में जब इलेक्ट्रिसिटी आ गया तो जो ह्यूमन एफर्ट्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमन एफर्ट्स से अगर हम 10 आइटम प्रोड्यूस करते थे पर मंथ, जब इलेक्ट्रिसिटी आ गया तो डेली हम 100 आइटम्स प्रोड्यूस करने लगे। जो इफिशियंसी है वो बढ़ गई, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, तो मास प्रोडक्शन होने लगा। असेंबली लाइन किस किस को पता है, देखा है कभी असेंबली लाइन आपने, हैव यू सीन असेंबली लाइन? Yes. असेंबली लाइन पता है आपको क्या होता Yes, है, sir. क्या होता है? एनी वन ऑफ यू कैन यू डिफाइन असेंबली लाइन, क्या होता है उसमें? Yes guys, fast, I want to give you break. What is assembly line? Quick, yes or no, yes 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 or no no no. अरे ये तो बताओ, yes yes और no no no, आपको पता है क्या नहीं? Cities of workers and गूगल सर्च करके बताओ, जो भी हो आपको पता होना जरूरी है। असेंबली लाइन इज नथिंग बट वन यू नो वन स्ट्रेट, यू कैन से रोलिंग, हम बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं उसको, एक Belt. rolling strip, you can say it, one long rolling strip on which the ready products are kept and it get assembled in a you know separately, or you can say in a slot wise, it's assembled step by step manner, it get assembled, that is called as the assembly line. that products like जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल का असेंबली लाइन है, कार मैन्युफैक्चरिंग का, तो कांदिवली का जो प्लांट है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, वो असेंबली लाइन का ही है, जहां पे रेडीमेड्स अलग अलग पार्ट्स गाड़ियों के पुर्जे आ जाते हैं, उधर अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उधर आ जाते हैं, और उधर क्या किया जाता है, एक बड़ी स्ट्रिप होती है, एक बड़ी लाइन होती है जो रोटेट होती रहती है, ठीक है, और हर एक स्ट्रिप के पास एक एक वर्कर, एक एक मजदूर रहता है, वो क्या करते रहता है, जैसे उसके पास वो आइटम आता है वो असेंबल करते जाता है। तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग में असेंबली लाइन का यूज किया जाता है। हाँ? तो ये अगर आपको पता नहीं होगा तो जस्ट टाइप असेंबली लाइन इन यूट्यूब, यू विल गेट द वीडियो, ठीक है। तो दैट इज नॉट अ बिग चैलेंज टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। सो मास प्रोडक्शन हैपेंस एंड दैट वो जो स्ट्रिप होती थी ना, वो इलेक्ट्रीफाई हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो चालू होने लगी। पहले क्या होता था, हर एक पुर्जे को ह्यूमन एफर्ट्स लगते थे, हाँ, बहुत सारे लोगों को पुर्जे इकट्ठा लाके रखने पड़ते थे और उसको फिर असेंबल करने पड़ते थे। अभी कैसे हो रहा है कि आप पुर्जे रख दो एक लाइन के ऊपर, रोलिंग स्ट्रिप के ऊपर, ऑटोमेटिकली दैट पार्ट विल कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू असेंबल इट। सो दैट इज नथिंग बट इंडस्ट्री रिवोल्यूशन 2.0। इसका एक एडवांटेज क्या है, मास प्रोडक्शन होने लगा। ओके, नेक्स्ट इंडस्ट्री रिवोल्यूशन 3.0, इसमें क्या हुआ, दैट इज 1960 20th सेंचुरी, 1940s के बाद जब कंप्यूटर्स इन्वेंट हुआ, कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हुआ, हाँ, जो ऐसे पोर्टेबल कंप्यूटर्स आने लगे, सेकेंड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, उसमें क्या हुआ, ऑटोमेशन हुआ। जो ह्यूमन एफर्ट्स अभी
100% था इंडस्ट्री 2.0 में, वो 50% पे आ गया। कितने परसेंट पे आ गया? 50%, ड्यू टू वेरियस इंटीग्रेटेड चिप्स, आईसीस, अलग अलग मशीन्स आने लगे जो ह्यूमन एफर्ट्स को उन्होंने 50% कर दिया, पार्शियली रिड्यूस कर दिया। एंड नाउ वी आर लिविंग इन इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 4.0। यहाँ पे क्या क्या है? IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स? एनीबडी ऑफ यू? आपको पता होना जरूरी है। IoT मतलब क्या? IoT मतलब क्या? एनीबडी ऑफ यू नो? किसी को पता है आपको? ओके, IoT इज नथिंग बट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। थिंग्स मतलब क्या? ऑब्जेक्ट। तो आप फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट आपके क्या क्या होते हैं? कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट आर द हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं? कौन से हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स है आपके घर में? अरे इतना तो बताओ, कौन से ऑब्जेक्ट? Washing machine, refrigerator. रेफ्रिजरेटर, आपका टीवी, देन एसी, आपका फिर आप कार बोल सकते हो आपकी। अभी आप सोचिए, ये सारे डिवाइसेस को चालू करने के लिए आपको हर एक डिवाइस के पास जाके आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता है ना, या सेटिंग करना पड़ता है ना। एम आई राइट? Yes, sir. अगर ये सारे डिवाइस एक दूसरे के साथ बात करने लगे थ्रू वन कनेक्शन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, फॉर एग्जाम्पल आपके मोबाइल में एक ऐप होगा जो ये सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करेगा। जैसे आप ऑफिस में गए, आप भूल गए थे लाइट्स ऑफ करना या फैंस AC ऑफ करना, तो आपने तुरंत क्या किया? आपके मोबाइल ऐप के साथ, वो अभी ऐप है वो आपके साथ, मैं सिर्फ IoT का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। तो आपने वो क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिकली आपके घर के लाइट्स ऑफ हो गए, ऑटोमेटिकली आपकी कार पार्किंग में लग गई। So what is that? Through internet connectivity, you are controlling the objects which are there surrounding to you, which are exist around you. ठीक है? जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, ठीक है, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को आप क्या कर रहे हो? कनेक्ट कर रहे हो वाया इंटरनेट, एंड यू आर कंट्रोलिंग दोज ऑब्जेक्ट। अभी ये आपका घर का हो गया। आप समझो इंडस्ट्री में जितने भी मशीन्स थे, उसको चालू करने के लिए आपको क्या लगता था? एक लेबरर लगता था, एक वर्कर लगता था जो उस मशीन को ऑपरेट कर सकता था। जब IoT आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये लेबरर्स रिप्लेस हो जाएंगे उस टेक्नोलॉजी के साथ। अभी हर एक मशीन चालू करने के लिए अलग अलग लेबरर नहीं लगेगा या ऑपरेटर नहीं लगेगा। थ्रू वन डिवाइस यू कैन ऑपरेट ऑल द मशीन्स। गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स? Yes, sir. क्रिस्टल क्लियर? समझ में आ रहा है आपको सिंपल वे से? Yes, sir. yes. Okay, great. Now, what is meant by cloud technology? What is meant by cloud technology? Yes. Yeah, no. Quick. Yes, guys, मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? Are you able to hear me? Yes, sir. Great. So, what is meant by cloud technology? Can you give me one example of cloud technology? Google Drive सबको पता है? Yes. Google Drive सबको Yes, पता sir. है? तो Google Drive is nothing but your cloud database. Yes, sir. तो आपको है ना कुछ मेमोरी, पहले आप क्या करते थे? मोबाइल के लिए एक मेमोरी कार्ड लेते थे एक्सटर्नली, Yes. जो आप क्या करते थे? आपके मोबाइल में डाल के आपका कैपेसिटी बढ़ाते थे स्टोरेज का। तो क्लाउड इज नथिंग बट वन पब्लिक डेटाबेस, यू कैन से। एक पब्लिक डेटाबेस है, जो उस पब्लिक डेटाबेस में एक मेमोरीज में आपको एक स्लॉट दिया जाता है, 5 GB का एक स्पेस दिया जाता है, जिसमें आप आपका डेटा स्टोर कर सकते हैं। और रिट्राइव के लिए आप कौन सा भी डिवाइस यूज कर सकते हो, मोबाइल थ्रू रिट्राइव कर सकते हो, लैपटॉप थ्रू कर सकते हो,
at any place you can access those data. अभी आप एज्यूम कीजिए पहले कैसे होता था, अगर आपके कंप्यूटर में कुछ डेटा आपने रखा है और आप दूसरे गांव चले गए, तो नाउ यू रिक्वायर दैट डेटा, देन हाउ यू कैन रिट्राइव दैट डेटा? इट्स वेरी डिफिकल्ट. But thanks to cloud technology, due to which your data is stored on cloud, with integrated storage medium, जहां से आप कौन से भी जगह जाओ, you can retrieve those data. That is nothing but cloud technology to storing data, in a cloud space and retrieving data that from that virtual cloud space. समझ में आ रहा है cloud technology मतलब? Now what is meant by big data? बिग डेटा मतलब क्या? This is important to understand how the current challenges are there related to industry relation. So what is big data? डेटा मतलब क्या? आपको पता है ना what is meant by data, knowledge, information? आपको डिफरेंशिएशन पता है ना? मैंने समझाया होगा आपको. मुझे याद है मैंने आपको बताया था. So big platforms like Google, Facebook, whatever data they use is basically a big data, like in huge numbers. Huge numbers. For example, देखिए Facebook पे आप कितना ट्रांजैक्शन डेली का करते हो? Yes. You are uploading your pics, you are posting some comment, कितने सारे शेयर, कितना डेटा करते हो? ये सारी चीजें, ये सारा एक्टिविटीज एक जगह स्टोर होता है, क्लाउड पे स्टोर होता है, क्लाउड स्टोरेज. बट उसको रिट्राइव करना है आपको, तो इतना सारा डेटा रिट्राइव कैसे करोगे? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग डेटा. तो जो बड़ा डेटा है उसके ऊपर जब ऑपरेशन किया जाता है, रिट्राइविंग, एडिटिंग, डिलीटिंग, स्टोरिंग, तो उसको बिग डेटा एनालिसिस बोला जाता है. एंड उसका एल्गोरिदम्स अलग अलग है. आईटी में टेक्निकल फॉर्म में उसका एल्गोरिदम्स, उसका प्रोग्रामिंग, उसका कोडिंग अलग होता है. ठीक है. तो बिग डेटा, तो ये सारी चीजें है ना आजकल हमारे इंडस्ट्रीज में हम देखते हैं इर्द गिर्द. ओके, IoT हम देख रहे हैं, क्लाउड टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, बिग डेटा देख रहे हैं. एंड इंडस्ट्री 4.0 में क्या हुआ है, जो 50% ह्यूमन एफर्ट था वो सिर्फ 10% पे आ गया है. हाउ मच ह्यूमन रिसोर्स वी रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्री 4.0? हाउ मच परसेंट? 10%. Only 10%. And when we move towards industry revolution 5.0, वो completely automation होगा. Robots will run your business. आपका मैन्युफैक्चरिंग पूरा रोबोटिक होगा. आपको कुछ जरूरत नहीं है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से, मशीन लर्निंग के हेल्प से है ना, आपका पूरा इंडस्ट्री आपका ऑटोमेशन पे चलेगा. आपको एक भी ह्यूमन की जरूरत नहीं लगेगी, एक भी ह्यूमन रिसोर्स की. तब रिलेशनशिप कैसे आप डिफाइन करोगे? इंडस्ट्री रिलेशन तब आउटडेटेड होगा टॉपिक. तब इंडस्ट्री रिलेशन एम्प्लॉय नहीं होंगे, रोबोट्स एंड इन बिटवीन एम्प्लॉयर्स होगा. जस्ट आई एम यूजिंग दिस फ्रेज. ओके, so that you have to understand the contemporary challenges or contemporary issues of industrial relation which we are facing in upcoming 20 or 30 years. Industry 5.0 ये ज्यादा दूर नहीं है. After 10 years you can see most of the companies are running on automation. Okay, अभी आप मुझे बताइए, ये स्लाइड आपको समझ में आया क्लियरली? In which industrial revolution we are living? What is the differentiation between industry 1.0, 2.0, 3 and 4? Have you understand? Yes. Great. So we'll take 15 minutes break and we'll start once again our industrial relation evolution. वो कैसे था ये हम देखेंगे. तो I am just taking your virtual attendance. Just a minute. Don't leave. ठीक है, we'll take 15 minutes break. So after that we'll see the evolution of your industrial relation. ठीक है, 15 minutes break. Okay.
Yes, sir. साढ़े 5 की